Hello guys, good morning. How are you? On the series of this online classes, today we are going to study about INA. INA is Indian National Army, that is also known as आजाद हिंद फौज. तो आज हम जानेंगे कि आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्या इसका मोटो था, क्या इसने काम किया एंड फिर इसका रिजल्ट क्या रहा. So guys, listen carefully. This is an important topic of our modern Indian history, important topic of our freedom struggle. So for everyone it is important. It is important for academic classes, for competitive students and all Indian citizens to well aware, to know about the Indian National Army, Azad Hind Force. So thing is that first, who thought about this? किसके दिमाग में आया? So formation of INA first came in the mind of Captain Mohan Singh. Captain Mohan Singh was an officer in British Indian Army. So first time formation of INA came into mind of Captain Mohan Singh. He formed the INA in 1942 to fight against the Britishers in India. He organized the INA in Singapore in 1942. Further, it was led by सुभाष चंद्र बोस. पहले कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया INA को, फिर इसकी अध्यक्षता, इसका जो लीडर, इसके जो लीडर बने वो हमारे जाने माने लीडर उस समय के सुभाष चंद्र बोस बने इसके. ठीक है फ्रेंड. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर the whole world was divided into two parts. They were fighting each other. England, America, then Russia, these nations were on the one side, and Japan, Germany and Italy were on another side. They were known as Axis. Okay, Axis country. Okay. Now, during Second World War, the Japan was fighting against Britain, and he was fighting very bravely. He defeated many powerful nations during Second World War. Okay. During Second World War, many Indian soldiers who was fighting on behalf of Britishers, they were captured by Japanese. They become the prisoner of war. जो वॉर में किसी सैनिक को जब अरेस्ट किया जाता है, कैप्चर्ड किया जाता है, तो उसे POW, prisoner of wars कहते हैं. तो many Indian soldiers were prisoner of war with Japan. So when Japan decided to hand over this prisoner of wars to Captain Mohan Singh. Okay, मोहन सिंह को उन्होंने डिसाइड किया, जापानीज ने, जो इंडियन सोल्जर्स अरेस्ट किए गए थे वो कैप्टन मोहन सिंह को हैंड ओवर किया जाए. ओके. फिर कैप्टन मोहन सिंह ऑर्गेनाइज दिस पीपल, रिक्रूटेड दिस पीपल एंड फॉर्म द INA. By the end of 1942, 40,000 people were ready to join INA. 40,000 लोग रेडी थे आजाद हिंद फौज ज्वाइन करने के लिए. सो they decided, आजाद हिंद फौज पीपल डिसाइडेड टू कम इनटू एक्शन आफ्टर द कॉलिंग ऑफ कांग्रेस और इंडियन पीपल. उन्होंने डिसाइड किया जब कांग्रेस की तरफ से बुलावा आएगा, या कांग्रेस की तरफ से या भारतीय लोगों की तरफ से हेल्प के लिए, तभी वो एक्शन में आएंगे. ओके. सो एंड दिस मेनी पीपल सीन इट एज अ शील्ड अगेंस्ट जापान मिसकंडक्ट ओवर इंडिया और अटैक ऑफ जापान. लोगों ने सोचा कि हम जापान के साथ, तो जापान बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, अटैक कर रहा था, डिफीट कर रहा था यूके एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज को. तो लोगों ने सोचा जापान हो सकता है इंडिया पे भी अटैक करे, बट इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो इंडिया पे अटैक भी नहीं करेगा, इंडिया के साथ कोई मिसकंडक्ट नहीं करेगा. सो इट वॉज सीन एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ओके. द आउटब्रेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. Quit India movement when it started on 9th August 1942. So outbreak of this Quit India movement, it again gave the energy to INA. Okay. So in 1st September 1942, the first division of INA was formed with 16,300 men. जो पहला डिवीजन बनाया गया था INA का on 1st September 1942, कितने लोग थे? 16,300 people was there on that.
Again, one important leader, Ras Bihari Bose. Ras Bihari Bose, he played an important role for the formation of INA. Ras Bihari Bose, very important role played by him, and he was the president of Indian Independence League. President of Indian Independence League in Tokyo. Okay friends, you tell me in comments the duration of First World War कब से कब तक चला and the duration of Second World War ये कब से कब तक चला. Okay, then tell me in comments. Okay friends, जब जापान में ये सब चीजें हो रही थी, जापान अपने जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उसको हैंड ओवर कर रहे थे, इसका फॉर्मेशन हुआ, तो दैट टाइम ही फील्स दैट आईएनए वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देम. जापान ने ये सोचा कि जो आईएनए बन रहा है, आजाद हिंद फौज बन रहा है, ये उनके लिए काफी फायदेमंद होगा. इसके थ्रू वो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं. सो इट वाज बेनिफिशियल फॉर. बट वेरी सुन देयर वर डिफरेंसेस जनरेटेड अमंगस्ट द जापानीज एंड द आईएनए पीपल. वो चाहते थे इसे अपने फायदे के लिए यूज करना एंड लिमिटेड टू मैक्सिमम 2000 पीपल ओनली. वो चाहते थे आईएनए में मैक्सिमम 2000 लोग ही रहे. ओके, बट ऑन द अदर हैंड कैप्टन मोहन सिंह वांटेड टू रिक्रूट एटलीस्ट 2 lakhs पीपल इन आईएनए बिकॉज हिज एम्बिशन वाज वेरी ब्रॉड. वो जो कैप्टन मोहन सिंह वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करके ब्रिटेन के खिलाफ इसका यूज किया जा सके, ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला जा सके. So this was his ambition, and due to the differences of ambitions, differences occurred among their thoughts. So Japan initially feels comfortable with the INA, but later, due to differences, due to ambitions, they were feeling awkward. Okay. The next phase of INA began with the arrival of Subhash Chandra Bose. अभी तक सुभाष चंद्र बोस पिक्चर बने थे. अब जो नेक्स्ट फेज होता, दिस वाज द फर्स्ट फेज, अभी तक हमने जो पढ़ा. नाउ दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ आईएनए एंड इट स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर इन जुलाई 1943 and assisted by Ras Bihari Bose. Earlier he had left the Congress after having developed differences with Gandhi ji. गांधी जी के साथ उनका डिफरेंसेस हुआ था इंडिया में जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे. तो गांधी जी के साथ जो मतभेद हुआ उसके बाद ही रिजाइन्ड फ्रॉम कांग्रेस एंड फॉर्म अ न्यू ग्रुप, न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1940. 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था बनाई एंड इन मार्च 41 ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम हाउस अरेस्ट गिवन बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने उनको हाउस अरेस्ट दिया था, तो वो किसी तरह वहां से बच के निकले इन मार्च 41 एंड रसिया, जापान, जर्मनी होते हुए वो सिंगापुर पहुंचे थे. जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी. ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी इंडियन पीपल जो वहां पे थे उन्हें नेताजी की उपाधि, कहीं कहीं पढ़ेंगे आप, नेताजी की उपाधि उन्हें एडोल्फ हिटलर ने भी दिया था. सो ही मेट टू हिटलर ऑल्सो. ऑन 21 October 1943 he set up a provisional government of free India. एक प्रोविजनल तत्कालीन या ये कह सकते हैं टेम्पररी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था. कब बनाया था? 21 October 1943 he set up a provisional government of free India with headquarters at Rangoon and Singapore. This provisional government was recognized by the Axis power. प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था उन्होंने फ्री इंडिया का, और उसका जो हेडक्वार्टर उन्होंने रंगून एंड सिंगापुर डिक्लेयर किया था. एंड दैट गवर्नमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस पावर. एक्सिस पावर कौन थे? मैंने बताया था आपको, एक्सिस पावर जापान, जर्मनी एंड इटली. फ्रेंड्स, व्हेन सुभाष चंद्र बोस टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ आईएनए, रिक्रूटर्स वर ट्रेन्ड. ओके, फंड्स वर कलेक्टेड फॉर द आईएनए. फंड्स भी इकट्ठे किए जा रहे थे. इवन अ वुमेन्स रेजिमेंट, महिलाओं की एक बटालियन भी बनाई गई थी जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट नेम वाज गिवन फॉर वुमेन बटालियन. एंड अनदर 3 रेजिमेंट वाज नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट एंड सुभाष रेजिमेंट. तो 4 रेजिमेंट बनाए गए थे. एक लेडीज के लिए दैट वाज रानी झांसी रेजिमेंट, और 3 जेंट्स के रेजिमेंट थे,
Gandhi Regiment, Nehru Regiment, and Subhas Regiment. Okay. Then on July 1944, Subhash Chandra Bose asked for Gandhiji's blessing. उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आह्वान किया and told India's last war of independence. भारत का आखिरी या फाइनल war for independence. And in that address, he addressed Gandhiji as a father of nation. गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. गांधी जी को फादर ऑफ नेशन फर्स्ट टाइम किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन. सो फादर ऑफ नेशन नेम वाज गिवन टू गांधी बाय सुभाष चंद्र बोस. ओके. नाउ Japanese handed over the Andaman and Nicobar Island to Indian National Army. जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, that was handed over by Japanese to INA, and that's name were given Shahid Island and Swaraj Island. ओके. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम जब वो INA को आजाद हिंद फौज को हैंडओवर किया गया, उसका नाम रखा गया शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड. ओके फ्रेंड, अभी रिसेंटली हमारे पीएम मोदी जी ने अगेन अंडमान निकोबार में 3 आइलैंड के नाम चेंज किए. 3 आइलैंड्स वर रीनेम्ड. तो मुझे बताएं वो 3 आइलैंड्स, व्हाट आर दोज 3 आइलैंड्स एंड द न्यू नेम ऑफ दीज आइलैंड्स. ओके, राइट मी इन योर कमेंट बॉक्स कि 3 आइलैंड कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम अभी मोदी जी ने रखे थे. ठीक है. ओके, कम टू नेक्स्ट. 1 INA बटालियन, जो आजाद हिंद फौज का एक बटालियन था, कमांडेड बाय शाहनवाज. ही वॉज अलाइव. शाहनवाज was allowed to accompany the Japanese army to the Indo-Burma front and participate in Imphal campaign. एक बटालियन शाहनवाज के लीडरशिप में भेजा गया था इंडो बर्मा बॉर्डर पे इम्फाल कैंपेन के लिए. ठीक है. he was allowed. Okay, but due to discriminatory behavior of Japanese army with INA people, due to denials of ration and other resources, they were demoralized. जापानी के साथ ये तो आगे बढ़े इम्फाल कैंपेन के लिए, इम्फाल पे आक्रमण के लिए, उसे जीतने के लिए. ओके. इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर फ्रॉम द इंडो बर्मा साइड. ओके. ये शाहनवाज के नेतृत्व में आगे बढ़े, बट इनके साथ जापानीज आर्मी से उन्होंने मिसबिहेव किया, मिसकंडक्ट किया. इन्हें सही से राशन नहीं दिया जाता था, इनको सही से रसद नहीं दी जाती थी, गोले बारूद सही से सप्लाई नहीं किए गए, और भी कई मीनियल वर्क करवाए गए थे. तो विद दिस दो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे वो डिमोरलाइज हो गए थे. ओके. द फेलियर ऑफ इम्फाल कैंपेन में फेल हो गया था आजाद हिंद फौज बिकॉज ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ जापान. ओके. तो फेलियर ऑफ इम्फाल कैंपेन and a steady Japanese retreat after any hope of INA, and इम्फाल कैंपेन फेल्योर एंड जापान का धीरे धीरे पीछे हटना. ओके. तो ये 2-3 चीजें ऐसी हुई कि INA का जो मोटिव था, जो उनका होप था, वो धीरे धीरे कम होता चला. बिकॉज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वॉज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी पावरफुल. But after the dropping of atom bomb on Hiroshima and Nagasaki, Japan become very weak. बहुत कमजोर हो गया, फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और फिर लास्ट में Japan surrendered the war. Okay. So after the surrender of Japan, the INA prisoner of wars brought back to India for court martials and to punish them. These people were captured by British Army, and now brought back to India for court martial, and a mass movement organized in favor of Azad Hind Fauj in India. There were mass pressure against the trial of INA prisoner of war, sometimes described as an ace of volcano. Firstly, Britishers decided to hold public trials of prisoner of wars of INA. जो युद्ध बंदी थे आजाद हिंद फौज के, उनके खिलाफ उन्होंने पब्लिक ट्रायल अपनाने का फैसला किया. एंड सेकेंड, द ट्रायल इन रेड फोर्ट एट दिल्ली in November 1945
and putting on dock together a Hindu Prem Kumar Sehgal, a Muslim Shahnawaz Khan, and a Sikh Gurubaksh Singh Dhillon. Okay. The defense of INA. Defense of INA prisoners in the court was organized by Bhola Lal Desai, Tej Bahadur Spru, Kailash Nath Kadzu, Pandit Nehru and Asif Ali. जब ये तीनों के खिलाफ प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लों के खिलाफ रेड फोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा था, तो इनके फेवर में जो एक टीम बनाई गई थी, वकीलों की टीम तैयार हो गई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भोलालाल देसाई, और उनके टीम में थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, पंडित नेहरू भी वकालत के लिए आए थे, आसिफ अली भी थे. ओके. आईएनए रिलीफ फंड बनाया गया था ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके. इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी. ये सारी चीजें भारतीयों के द्वारा की गई थी टू वर्क इन फेवर ऑफ आजाद हिंद फौज. ओके. द एजिटेशन गॉट वाइड पब्लिसिटी थ्रू प्रेस, पैम्फलेट्स, मीटिंग. बहुत ही पूरे भारत में आईएनए के समर्थन में लोग सड़कों पे उतर आए थे इनके फेवर में. प्रेस में इनकी चर्चा हो रही थी, पैम्फलेट्स बांटे जा रहे थे, मीटिंग ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सरकारी स्टाफ थे, अफसर थे, वो भी मिलिट्री, जो इंडियन मिलिट्री थी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके भी लोग खुल के इनके फेवर में आ चुके थे. वो भी मीटिंग अटेंड करते थे, स्पीच देते थे इन फेवर ऑफ आईएनए. ओके. सो आईएनए वीक वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 5 to 11 नवंबर 1945. 5 से 11 नवंबर के बीच में आईएनए वीक, आजाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया. एंड ऑन 12 नवंबर 1945 आईएनए डे वाज सेलिब्रेटेड. आजाद हिंद फौज दिवस बनाया गया 12 नवंबर 1945 को. ओके. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट टाइम, उस समय जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था, कम्युनिस्ट पार्टीज थे, सभी लोगों ने खुल के समर्थन किया था आजाद हिंद फौज का. ऐसी एकता देखने को मिली थी उस समय देश में. आप समझ सकते हैं लोगों के दिल में कितना प्यार था, कितना स्नेह था, कितना रिस्पेक्ट था इंडियन नेशनल आर्मी के प्रति. ओके. सो और इस कांड के बाद, इस घटना के बाद ब्रिटेन को समझ में आ गया कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है. ठीक है. वो डिफेंसिव हो गए. There were three major upsurge that time. First was 21st November 1945 in Calcutta over INA trials. Calcutta में 21st November 1945 कलकत्ता में विद्रोह हुआ था INA ट्रायल्स को लेके. Second 11 Feb 1946, 11 Feb 1946 in Calcutta against 7-year sentence to आईएनए ऑफिसर रशीद अली. रशीद अली को 7 साल की सजा दी गई थी. उसके अगेंस्ट कलकत्ता में विद्रोह हुआ था. एंड थर्ड विद्रोह, जो थर्ड एजिटेशन था, ऑन 18 अप्रैल 1946 इन बॉम्बे, स्ट्राइक बाय रॉयल इंडियन नेवी. जो उस समय भारत की नेवी थी, नौसेना थी, उन्होंने हड़ताल कर दिया था. कहां पे? बॉम्बे में. किस डेट को? 18 Feb 1946. ओके. Due to these three upsurges, British government decided to remit the imprisonment sentence passed against the first batch, and only those INA members accused of murder or brutal treatment of fellow prisoners would be brought to trial. ये सारे अपसर्ज, ये सारे विद्रोह या इनके समर्थन में जितने लोग आए थे, इन सभी को देखते हुए ब्रिटिशर्स को इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट समझ में आ गया. वो डिफेंसिव हो गए. तो उन्होंने जो पहले ट्रायल की घोषणा की थी उसको वापस ले लिया. केवल उन्हीं लोगों पे मुकदमा चलाने का फैसला किया गया जिन पे मर्डर का या अपने ब्रूचुअल ट्रीटमेंट ऑफ फेलो, अपने सहयोगी के साथ किसी भी क्रूरता के व्यवहार का आरोप था. केवल उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया. ओके. नाउ रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस एंड अ प्रोमिनेंट लीडर इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल. बहुत सारे योगदान थे. He was became the president of Congress. Okay, he organized the forward bloc. He took the lead of INA, Indian National Army, Azad Hind Force, organized people there, recruited people, and
make the plan to get India vacated from Britishers. Okay. Bose, he is said to have been killed in an air. अभी तक हमने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में समझा, कब बना, कैसे बना, कैसे इनका लास्ट मोमेंट आया. Okay, what was their contribution? Okay, now some important facts about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, that was in Odisha. 23rd January 1897. Okay. Now Bose is said to have been killed in an air crash over Taipei, that is in Taiwan, on his way to Tokyo in 18th August 1945. 18th August 1945 को एयर क्रैश में उनकी मृत्यु ऐसा कहा जाता. इट इज नॉट येट प्रूव्ड. ओके. नाउ उन्होंने 2-3 स्लोगन दिए थे व्हाइल दिस आईएनए एक्टिव जब ये थे आईएनए तब उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देन दिल्ली चलो, एंड जय हिंद slogan he has given in Germany. Okay, so these 3 important slogans asked in many examination. So that this was the important facts about Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, now as I asked you questions to give in reply in comment box. The first World War was from 1914 to 1918. First World War 1914 to 1918 AD. Second World War 1939 AD to 1945 AD. 1939 to 1945. Okay, and the last questions which I was asked you, what are those islands which name was changed by Prime Minister Narendra Modi? So that islands are Havelock Island. Havelock Island का नाम चेंज किया करके स्वराज आइलैंड किया गया. Havelock Island is changed to स्वराज आइलैंड. नील आइलैंड चेंज टू शहीद आइलैंड. नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड कर दिया गया एंड रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया. So 3 islands which name was changed recently by PM Modi. Okay, thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें. कल फिर मिलेंगे 10 o'clock again with new classes. So thank you so much. Bye bye. Jai Hind.